Okay, we are live now. Good morning, audience, and welcome to another session of Sustainable Saturday. Sustainable Saturday is a series of sessions that we conduct on various environment, conservation, and awareness related topics. And today, for our session, we have with us Mr. Siddharth Ingle. Siddharth is a passionate environmental professional and a botanist currently working as the general manager at Green Yatra. With experience of 8 years of working in the field of climate action, which includes environmental conservation, environmental restoration, environmental education, afforestation, ecological restoration, and also water body restoration. He has made nearly 122 Miyawaki dense forests in India. He is passionate about urban biodiversity restoration too. He was also recognized as the Environment Day hero by the United Nations Education Program, that is the UNEP, for his efforts in the fight to beat air pollution. And today, Siddharth here will be speaking with us about this very interesting topic on the unique native trees of India. So let's hear what you have to say, Siddharth. Over to you. Thank you, Sandra, for the introduction. Welcome to all viewers. Today, I will talk about some unique native trees of India. When we talk about conservation, restoration, that time we should keep one thing in our mind. For conservation, for real conservation, and for real restoration, we should only plant the local native species. So that is a fundamental of restoration. The flora of India is both rich and diverse due to wide range of variation in climate and ecological habitat. As per the Botanical Survey of India, India has 45,500 tree species identified and described, which account for about 7% of total plant species in the world, and many more are yet to identify. So today I will talk about few species which easily found in our forest and surroundings. So at Green Yatra, we are not just doing tree plantation, we are conserving and restoring the urban ecosystem by planting local native trees. We are trying to bringing back our original unique flora, which is lost due to the various anthropogenic activities, like when we say globalization, urbanization. So due to various type of anthropogenic activities, we lost our original flora. So we are trying to just bringing back that flora by various unique projects of Green Yatra. Yeah. I would like to start today's session with one of unique and highly medicinal herb that is ashwagandha. So I will keep this session a little bit combination of English and Hindi so everyone can understand. So as you can see, the name of ashwagandha, ashwa means horse and gandha means smell. So अश्वगंधा इसको इसीलिए बोला जाता है कि इसके जो रूट्स होते हैं, इसके रूट्स का जो स्मेल होता है वो हॉर्स जैसा आता है, घोड़े जैसा आता है. एंड अश्वगंधा इज अ यूनिक एंड हाईली मेडिसिनल प्लांट. सबसे ज्यादा अश्वगंधा यूज होता है एज अ हेल्थ टॉनिक एंड इम्यूनिटी बूस्टर. सो सेंटा जैसा मुझे याद है कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, तो एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट विटामिन सी टैबलेट. बिकॉज विटामिन सी टैबलेट से क्या हो रहा था कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हम सबको पता है, तो सब विटामिन सी के टैबलेट ले रहे थे. इवन मार्केट में टैबलेट्स की कमी हो गई थी, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे उस समय. जब हम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ट्राई करते हैं कि खुद की इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें. उस समय मैं, मेरे जो कलीग्स, मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, हमने बस अश्वगंधा सिरप यूज किया. एक टॉनिक आता है अश्वगंधा रिश नाम का, कोई भी जनरल मेडिकल पे आपको मिल जाता है. बहुत सारे ब्रांड्स में वो आपको अवेलेबल है. सो अश्वगंधा इज अ immunity booster and a health tonic. So it is a perennial herb that reaches about 6 feet or 7 feet in nature. The biologically active chemical constituent of Withania somnifera include alkaloids, some saponins, and some steroidal lactones, just like withanolides and withanoferin. And ashwagandha used to treat nervous diseases like Parkinson diseases, epilepsy, and other diseases like intestinal infection, leprosy. Also, it helped to improve memory and reducing the stress. जब मैं बॉटनी कर रहा था, मास्टर डिग्री कर रहा था, उस समय हमें दो हाईली इफेक्टिव हर्ब के बारे में सिखाया गया था. उसमें से एक अश्वगंधा है, एंड सेकेंड वन इज जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, एस्पेरागस रेसिमोस. जब इम्यूनिटी बूस्टर की बात आती है, मुझे लगता है कि जो मेडिकल से हम टैबलेट्स लेते हैं या फिर जो भी दवाई लेते हैं, उसकी जगह पे अगर हम ये हर्बल
टॉनिक यूज करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा. So Withania somnifera is one of the most useful immunity booster in the India. बट अभी क्या हो रहा है कि हम हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, आयुर्वेदिक नॉलेज है, वो भूलते जा रहे हैं. एंड वी आर जस्ट टेकिंग टैबलेट्स, सम मेडिसिन एंड सम अदर केमिकल्स. So that is very harmful for our body or body organs. So I think we should consider and we should take this type of organic and Ayurvedic tonic to improve our immunity, to improve our health. Next one is asparagus racemosus. Yeah. So जैसा हमने देखा कि अश्वगंधा इज अ रूट ड्रग. इसके जो रूट्स होते हैं मोस्टली रूट यूज किए जाते हैं. सेम विथ शतावरी. शतावरी के भी जो रूट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो मूली जैसे जो रूट्स दिख रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इस रूट्स का ही यूज किया जाता है. सो अश्वगंधा शतावरी इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फीमेल्स. Why it's called that friends of female? Because there are 60 to 70% जो डिसीजेस होती है फीमेल की या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको ठीक करने के लिए शतावरी यूज किया जाता है. सो शतावरी स्पेसिफिकली रिकमेंडेड टू इनहांस द लैक्टेशन इन नर्सिंग मदर. सो आप देखिए कि जो सिंपल सा पौधा आपके सामने दिख रहा है, जो एकदम छोटा सा पौधा दिख रहा है, उसका कितना बड़ा यूज होता है कि ये लैक्टेशन के लिए यूज किया जाता है. अभी बहुत सारे गांव में जब हम देखते हैं तो माल न्यूट्रिशन का एक बड़ी समस्या होती है, बड़ी दिक्कत होती है. उसके वजह से क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद लैक्टेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है मदर को. तो उस समय इसके जो रूट्स होते हैं उसको ड्राई किया जाता है, उसको पीस कर उसका पाउडर बना के उसको दूध में मिला के उस माता को दिया जाता है. तो इट प्रमोट सम हार्मोन्स जो कि बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यूज होता है. तो बेसिकली शतावरी इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए. Role of Shatavari in enhancing immunity function has also been proven scientifically. Shatavari has antioxidant and anti-inflammatory properties, and it helpful to reduce cholesterol, treat diarrhea, kidney stone, immunity booster, treatment of diseases related to female reproductive system. So that's why it's called कि Shatavari is the best friend of a female. So सेंटा जैसा घर में हम पेड़ लगाते हैं, मैं देखता हूँ कि आजकल होम गार्डनिंग का बहुत क्रेज चल रहा है कि लोग अपने घर में अलग अलग टाइप के पेड़ लगाते हैं. मुझे लगता है कि बस ब्यूटिफिकेशन वाले पेड़ लगाने से अच्छा अगर हम इस प्रकार के मेडिसिनल आयुर्वेदिक पेड़ हमारे घर में लगाएंगे तो हम उसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हमें इससे मिल सकते हैं. सो इट माइट बी अ गुड आइडिया टू प्लांट दिस टाइप ऑफ ट्रीज इन अवर होम. और अगर आप छत पे कोई पेड़ लगाना चाह रहे हो, टेरेस पे लगाना चाह रहे हो, तो वी शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस ट्रीज. एंड आई थिंक ये जो चीजें आप बता रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल नॉलेज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसा जो नॉलेज है हम हमारे बच्चों में एंड नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करें. तो प्लांट करेंगे अगर हम ये सारे प्लांट्स घर पर रखेंगे तो हम एक प्रकार से अवेयरनेस भी स्प्रेड करने की कोशिश. एग्जैक्टली. राइट. और आप देखिए ना कि कितनी सिंपल चीजें हैं. मींस इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से कितने जो अभी जस्ट एक हमने एग्जांपल देखा पीछे, जो अश्वगंधा है वो कुछ ऐसे डिसीजेस क्योर करता है जैसे कि पार्किंसोनिज्म, जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज होते हैं, उसको ट्रीट करने में वो एक छोटा सा हर्ब काम आता है. शतावरी हम देख रहे हैं, एकदम सादा दिखने वाला, सिंपल दिखने वाला ये जो श्रब है, हर्ब है, ये इतना यूजफुल है कि फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ये सॉल्व करता है. बहुत सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी सॉल्व करता है. तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जो लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितना हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जितना हम डेवलप होते जा रहे हैं, मतलब सो कॉल्ड डेवलपमेंट जो हो रहा है, उस डेवलपमेंट में हम हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज भूलते जा रहे हैं, हम हमारा कोर भूलते जा रहे हैं, और जो हमने दुनिया को दिया. देखिए, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि सारी दुनिया हमारा आयुर्वेद का रिसर्च कर रही है, स्टडी कर रही है, और अलग अलग चीजें आयुर्वेद से वो सीख रही है पूरी दुनिया, और वही चीजें हमें बेच रही है बाद में. सो ये तो मतलब ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि हमारी चीजें बाहर जाके फिर से हम तक आ रही है. तो इट्स बेटर ना कि वो चीजें हम समझे, क्योंकि वो हमारे कंट्री से ओरिजिन करते हैं, जस्ट लाइक आयुर्वेदा. और मैंने नीचे कुछ फोटोज भी दिए कि जो अलग अलग आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल जो मेडिसिन है जिसमें ये कंटेंट यूज किया है. जैसा अभी आप नीचे देख पा रहे हो कि एस्पेरेगस शतावरी का जो एक पाउडर है वो भी अवेलेबल है. सो बहुत सारे कंपनी जो है वो इसको सेल करते हैं.
तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सिंपल सी चीज आप आपके बैकयार्ड में लगा सकते हो, बैकयार्ड में लगा के वो आप एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हो, वही चीज मतलब कंपनीज या फिर अलग अलग ब्रांड्स आपको बेच रहे हैं, तो बेटर है कि आप खुद का एक छोटा सा मेडिसिनल गार्डन बना सकते हो, जो कि आपको आपके फैमिली को काम आएगा, प्लस आप अपना जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी हम पास ऑन कर पाएंगे। सो डेफिनेटली इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पीसीज की तरफ। या सो अभी हमने दो रूट ड्रग देखे, दोनों अश्वगंधा एंड शतावरी जो थे उनका रूट्स यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। अभी हम देख रहे हैं पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सो पलाश इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट। इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है कि जब जंगल में फ्लाश को फ्लावरिंग आती है, तो उस समय जब हम दूर से उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी है, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स है बहुत ही ब्यूटीफुल, आप देख पा रहे हो कि ऑरेंज रेड कलर के फ्लावर्स है, तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी है, इसलिए इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है। बट इसमें और एक चीज है, जो गुलमोहर नाम का नॉन नेटिव पेड़ है, जिसका ओरिजिन मदागास्कर आइलैंड है, उसको भी कुछ लोग फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी हमें थोड़ी सी समझना पड़ेगी कि जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, तो उस पर भी हमें कोई एक्टिविटी या फिर अवेयरनेस करने की जरूरत है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि गुलमोहर इज अ फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, देन फिर मैं उनको डिटेल में समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, गुलमोहर तो बाहर से आया है, अभी अभी आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, बट ओरिजिनल फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज पलाश। तो पलाश बिलोंगिंग फ्रॉम फैबियासी फैमिली, एंड पलाश इज यूज फॉर टू ट्रीट वॉर्म्स, डायरिया एंड डायबिटीज। बट ये तो उसके मेडिसिनल वैल्यूज हो गए, मैं आपको इसकी कुछ यूनिक फीचर्स बताना चाहता हूँ स्पेशली पलाश के। So, as per the scientific study, around 94 avian species belonging to 31 families were found associated with the Butia monosperma, either for feeding, either for roasting or nesting. So, आप imagine कर सकते हो कि one single tree can attract 94 types of avian species. तो दिस इज द बिगेस्ट, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पेड़ का, कि एक पेड़ पे 94 टाइप के बर्ड्स या फिर 94 टाइप की जो स्पीसीज आ रही है, तो इट्स अ रियल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। गुलमोहर जब हम लगाते हैं, उसके फ्लावर्स हमें रेड कलर के दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, बट वहां पे कोई बायोडाइवर्सिटी अटैक नहीं होती, कोई बर्ड वहां पे घोंसला नहीं बनाता है, रोस्टिंग नहीं की जाती, बिकॉज दैट इज नॉन नेटिव एंड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस लोकल इकोसिस्टम। बट उसी जगह पे अगर हम पलाश लगाते हैं, तो हमें फ्लावर भी मिलेंगे, एक बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी। So it's a best option to replace the गुलमोहर, because गुलमोहर is not a native। आप देखोगे कि बारिश में सबसे ज्यादा पेड़ जो गिरता है वो गुलमोहर होता है, एंड उसके बस लाल रेड कलर के फ्लावरिंग की वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, बट दैट इज नॉट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का इतना नहीं है जितना पलाश का है। देन और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे जो पूर्वज थे वो होली जब वो खेलते थे, तो उस समय वो ऑर्गेनिक कलर बनाते थे। तो जो रेड कलर का ऑर्गेनिक कलर बनाते थे वो पलाश के फ्लावर से बनाते थे। आप देख सकते हो कि ये जो फ्लावर्स है, इसको ड्राई किया जाता है और इसको ड्राई करके इसका ऑर्गेनिक कलर बनाया जाता था। बट जैसा जैसा मैंने जैसा अभी आपको बोल रहा हूँ कि जैसा हम डेवलप होते जा रहे हैं, तो हम हमारी जो अच्छी चीज है, जो बेनिफिशियल चीज है, उसको पीछे रखे हम आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी हम आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका फेस खराब हो जाता है, बहुत सारी इश्यूज हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं। सो हमारे जो पूर्वज थे वो ऑर्गेनिक कलर यूज करते थे, पलाश का भी यूज होता था कलर्स बनाने के लिए। सो देखिए हमारे रिलीजन एंड हमारा इन्वायरमेंट कितना अलाइन है, कि जब होली आती है तो होली में इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये कितना अलाइनमेंट किया है। तो ये चीज भी हमें सोचनी चाहिए कि हमारा जो कल्चर है वो हमारा कल्चर इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, प्रोटेक्टिंग है। हमने हमेशा हमारे कल्चर में इन्वायरमेंट को प्राय ये दिया है, स्थान दिया है। और जैसा आप देखोगे कि बहुत सारे जो इंडिया में कल्चर्स है वो डिपेंड है नेचर पे, जो बोलते हैं कि नेचर देवता है या फिर सारी चीजें उनको नेचर से मिलते हैं। तो नेचर बहुत अलाइन है हमारे कल्चर से, और हम हमारे नेचर को ही प्रायोरिटी देते हैं। देन और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। So you can see here, German firm discovered the centuries old Indian leaf plate. So एक बेटर इंडिया नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे ये न्यूज मैंने देखी थी। तो आप देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाई, एंड दे आर क्लेमिंग कि वी मेड अ वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल प्लेट, एंड दे आर सेलिंग दिस प्लेट फॉर 800 रुपीज। अभी जहां तक मतलब हमें पता है, हम ये प्लेट्स हजारों सालों से यूज करते हैं। आज भी आप किसी मंदिर में चले जाइए तो वहां पे प्रसाद के लिए आपको ये प्लेट मिलेगी। इवन हमारा इंडियन ट्रेडिशन में
मुझे लगता है कि कुछ 10-12 साल पहले जो शादियां होती थी वहां पे एक पत्तल यूज की जाती थी, जिसको हम मराठी में पत्तरवाड़ी बोलते थे, पत्तल बोलते थे, वो यूज की जाती थी। तो वो बनी हुई होती थी इस पलाश पेड़ से, पलाश के ट्री से। ये जो आप यहाँ पे लीफ देख पा रहे हो, इस लीफ से हम बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाते थे, जिसको पत्तल या फिर पत्तलवरी बोलते थे, और ये हम हजारों सालों से यूज कर रहे हैं। बट आप देखिए ट्रांजिशन हमारा कैसा हुआ कि हजारों सालों से हम बायोडिग्रेडेबल चीज यूज कर रहे थे, नेचर को बेनिफिशियल चीज यूज कर रहे थे, और पिछले 5-10 साल से हमने क्या किया कि जो हमारी पत्तल थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक और थर्मोकॉल से। एंड वी आर फीलिंग लाइक यस अभी हम मॉडर्न हो गए। क्यों? क्योंकि हमने हमारी ऑर्गेनिक प्लेट को पत्तल या प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया। एंड जर्मनी या फिर और जो बाहरी देश है वो अभी हमारा कल्चर जो हम 10 साल पहले बंद कर चुके हैं वो अभी फिर से इंट्रोड्यूस करके वो क्लेम कर रहे हैं कि दे मेड अ बायोडिग्रेडेबल प्लेट एंड दे आर वर्किंग फॉर इन्वायरमेंट एंड दे आर कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। ये चीजें हम कर चुके हैं। बट सैंड्रा, मुझे इसमें क्या लगता है कि इसमें गलती हमारी है। हमारी गलती इसलिए कि हम हमारा जो नॉलेज है या फिर हमारी जो चीजें हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। आप अगर देखोगे कि बासमती राइस के साथ भी सेम हुआ है, अगर आप देखोगे हल्दी का पेटेंट उसके साथ भी सेम हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं कि जो इंडिया में हजारों सालों से चल रही थी, बट हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, प्रॉपर उसको दुनिया के सामने ला नहीं पाए। वही चीजें बाहर के लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और हम तक फिर से लाते कि देखो ये हमने किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है और ये इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना चाहिए। तो जैसा देखा हमने कि एक पलाश का पेड़ 94 टाइप के बर्ड स्पेसिस को अट्रैक्ट करता है, उसके बाद में इसके फ्लावर से ऑर्गेनिक कलर बनाया जाता है, इससे बायोडिग्रेडेबल प्लेट बनाई जाती है जिसको हम पत्थर बोलते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग कि ये स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड भी है। तो झारखंड के लोगों के लिए ये पेड़ थोड़ा विशेष मायने रखता है। एंड वेस्ट बंगाल में एक इवेंट होता है, एक फेस्टिवल होता है, वहां पे इस फ्लावर का विशेष महत्व है कि ये फ्लावर के वो अलग अलग टाइप के ब्यूटिफिकेशन के सामान बना के उस फेस्टिवल में यूज करते हैं। एंड मध्य प्रदेश में बहुत सारे गांव में इसके जो लकड़ी होती है उसको छील के उसका ब्रश बनाया जाता है घर पेंटिंग के लिए। सो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि वन सिंगल ट्री कैन सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी, कैन सपोर्ट द ट्रेडिशन, और हर एक चीज के लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ उसके हमने ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज देखे, ट्रेडिशनल यूजेस देखे, और बहुत सारी चीजें देखी। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ नेटिव स्पेसिस। So Siddharth, Siddharth, I was just wondering, अभी just like आपने mention किया था ना कि Gulmohar is also getting considered as like the flame of the forest, and instead Palash actually होता है जो actually में as important species है। And as cities, अगर हमारे city वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज्यादा गुलमोहर ही दिखते हैं। So अगर हम ऐसा awareness क्रिएट करने ट्राई करें लोगों में कि ज्यादा पलाश के पेड़ लगाओ, तो उसका सर्वाइवेबिलिटी कैसा होगा? लाइक सिंस पलाश इज लाइक अ फॉरेस्ट ट्री, तो वो सिटीज में कैसा होता है उसका सर्वाइवल? तो अभी आप अगर देखोगे पलाश का जो हैबिटेट है, पलाश ड्राई रीजन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सॉरी सिद्धार्थ, आप म्यूट पर हैं, आई एम सो सॉरी। सो अगर आप देखोगे कि पलाश का जो हैबिटेट है, मोस्टली पलाश ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ड्राई रीजन में पाया जाता है। मराठवाड़ा में बहुत सारी जगह पे पलाश पाया जाता है। एंड जैसा मैंने बताया कि कभी भी हम प्लांटेशन प्लान करते हैं तो हमें उस जगह की लोकल नेटिव स्पीसीज का स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे महाराष्ट्र में पेड़ लगाने हैं, या फिर महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली अगर मराठवाड़ा में लगाने हैं, या फिर विदर्भ डिवीजन में लगाने हैं, तो मुझे सबसे पहले तो उस जगह की लोकल इकोसिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, उस जगह के लोकल नेटिव स्पेसिस को स्टडी करना पड़ेगा। उसी के बाद हम स्पेसिस सिलेक्ट कर सकते हैं। और रही बात पलाश के सर्वाइवल होने की, तो पलाश का सर्वाइवल बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी पलाश ऐसी कंडीशन में सर्वाइव होता है कि जहां पे कम से कम पानी है, जहां पे कम से कम सर्वाइवल करने के लिए न्यूट्रिएंट है। सो बैरन लैंड में पलाश सर्वाइव करता है, जंगल में पलाश सर्वाइव करता है। तो अगर हम उसको प्रॉपरली केयर एंड मेंटेनेंस करें, उसको न्यूट्रिएंट दे, तो डेफिनेटली पलाश एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अर्बन एरिया के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें आपको कलरफुल फ्लावर तो मिलेंगे ही, बट उसके साथ आपके घर में या फिर आपके बैकयार्ड में अलग अलग पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे। वो एक अलग सेटिस्फेक्शन आपको एक बोनस के तौर पे मिल सकता है अगर आप पलाश लगाओगे इंस्टेड ऑफ गुलमोहर। या उसका सर्वाइवल रेट तो अच्छा है पलाश का, उसका कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू। हमने देखा कि एक ट्री कितना कंट्रीब्यूशन करता है हमारे ट्रेडिशन में, हमारे बायोडाइवर्सिटी में। अभी आते हैं एक नेक्स्ट ट्री जो है अर्जुन।
मे बी आपने कभी सुना होगा कि अर्जुन की छाल की चाय पियो तो आपको मतलब डिसीजेस नहीं होंगे, ये नहीं होगा। ये एक बहुत कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट ट्री माना जाता है हमारे आयुर्वेदा में। सो अर्जुना इज ऑल्सो नोन एज अर्जुन ट्री एंड इट इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया. It has various medicinal properties like antioxidant, anti-inflammatory, and antimicrobial properties. So Arjun helps to reduce skin and heart diseases. So mostly इसको अर्जुन नाम इसलिए दिया गया है, ये है हृदय रक्षक. सो हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं हार्ट में, तो उसको क्योर करने के लिए या फिर हार्ट का ओवरऑल हेल्थ ठीक रखने के लिए अर्जुन का यूज हो जाता है. आपने सुना होगा कि अर्जुन की छाल की चाय पीते हैं लोग. जो इसकी बार्क होती है, वो बार्क में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट है जो आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और आपके हार्ट को वो और मोर प्रोडक्टिव बनाता है. एंड इट्स अ वेरी कॉमन ट्री, बट अभी अर्बन एरियाज में आप देखो कि आपको अर्जुन देखने को भी बहुत कम मिलेगा. हार्ट के साथ स्किन डिसीजेज में भी अर्जुन काम आता है. अर्जुन ट्री आल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपर टेंसिव प्रॉपर्टी एंड हेल्प्स टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर टू. फॉर मैक्सिमम बेनिफिट इन केस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, अर्जुन की जो छाल होती है उसको मिल्क में बॉईल करके हम ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार. बट जो भी हम मेडिसिन लेंगे या फिर जो भी हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेंगे एज अ मेडिसिन, एक बार डॉक्टर को बताने के बाद ही हम बोलेंगे. क्योंकि क्या होता है कि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, रेजिस्टेंट अलग अलग होता है. तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होता है या फिर जो दवाई है वो दी जाती है. तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट कोई भी चीज लेने से अच्छा एक बार हम फिजिशियन से कंसल्ट करके ये चीजें लें. बट जनरली जैसा हम चाय पीते हैं वैसा हम अर्जुन के छाल की चाय पी सकते हैं. तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका हार्ट अच्छा होगा और अच्छे से काम करेगा. और जो अभी हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज. पहले ऐसा सुनते थे कि कोई बूढ़ा आदमी 50 साल का, 60 साल का हार्ट अटैक से मरा है. बट अभी हम देख रहे हैं कि 18 साल के, 20 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है. इवन बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है. सो ये जो चीजें हैं जो हम खा रहे हैं या फिर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब जो केमिकल हम हमारे शरीर में जो ऐड कर रहे हैं, उसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है. तो मुझे लगता है कि यूज ऑफ दिस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और यूज ऑफ दिस आयुर्वेदिक कंटेंट इज अ गुड ऑप्शन, कि इससे हम थोड़ा सा बच सकें. So, Arjun also helps to control diarrhea, asthma, and cough. External application of Arjun bark helps to manage various skin disorders like itching and rashes. So, इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि अगर प्रॉपरली हम इस पेड़ का इस्तेमाल करें, इसकी छाल का इस्तेमाल करें, तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी. अभी तो ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको सर दुख रहा है या फिर आपका पैर दुख रहा है तो उठो और सीधा हॉस्पिटल में जाओ, और बहुत सारी टैबलेट लो. मुझे लगता है एक समय पे 3-3, 4-4 टैबलेट हॉस्पिटल में मिलती है, वो खाओ और इमीडिएट रिलीव करो. बट दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. इनडायरेक्टली आप आपके शरीर में पॉइजन इंसर्ट कर रहे हो, और वो पॉइजन कुछ समय बाद आपके जो ऑर्गन है उसको फेल कर देगा, उसको डैमेज करेगा. सो बेटर है कि जो हमारे नेचर ने हमें दिया है या फिर जो नेचर ऑफर कर रहा है उसको हम समझे और वो चीज हम एक्सेप्ट करें. बेसिक चीजें, अश्वगंधा, शतावरी, ये चीजें बहुत कॉमन है, कहीं पे भी अवेलेबल होती है, कोई भी मार्केट में, ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल होती है. हम इसका डेली यूज करते हैं. कोरोना के समय में मेरी फैमिली ने बस अश्वगंधा ही यूज किया. हमें कोई भी प्रकार का अलग टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी. विटामिन सी की टैबलेट भी हमने बिल्कुल नहीं, क्योंकि अश्वगंधा सबसे बढ़िया ऑप्शन था, ये मुझे पता था. और जो भी हमारी बॉटनिस्ट कम्युनिटी थी, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने अश्वगंधा को प्रीफर किया कोई टैबलेट लेने से अच्छा. सो नेक्स्ट जी देखते हैं. सो दिस इज अ बोस्वेलिया सेराटा. ये एक यूनिक है. इसको सलाई बोलते हैं मराठी में, सलाई और शल्लकी बोलते हैं. तो इसका इसका उल्लेख आयुर्वेद में भी किया गया है, और बहुत सारे जो हमारे एंशियंट ग्रंथ है उसमें भी शल्लकी का यूज किया गया है. सो सलाई इज वन ऑफ द एंशियंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल हर्ब्स इन आयुर्वेदा. इसको गजा भक्ष भी बोला गया है. गजा भक्ष मतलब जो हाथी है, हाथी का फेवरेट फूड, कि वो डाइट में इस पेड़ को खाते थे, इसलिए इसको गजा भक्षा बोला गया है. एंड सबसे बड़ा यूज जो है सलाई का, वो है अर्थराइटिस के लिए, कि आपको अगर जॉइंट पेन होता है, नी पेन होता है, जो भी अर्थराइटिस रिलेटेड समस्या है आपको, तो सलाई की टैबलेट्स अभी आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है, इंडियन ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड है, कि जो सलाई का जो डिंक होता है, वो डिंक से वो टैबलेट्स बनाते हैं, जो गोंद हम बोलते हैं उसको. तो सिंपल सा आज भी जो हमारे
ग्रामीण एरिया में, जो रूरल एरिया में जो लोग हैं जिनको नॉलेज है इस पेड़ का या फिर ट्रेडिशन मेडिसिन का, वो क्या करते हैं कि जो भी सलाई का पेड़ उनको दिखता है तो उसको चाकू से या फिर कोई हथियार से उसको कट करते हैं, उसका जो बार्क होता है उसको बार्क को थोड़ा सा डैमेज करते हैं। 2 दिन बाद क्या होता है कि उसमें जो उसका गम होता है वो गम ऊज आउट होके आता है, और फिर वो गम लेके वो खाते हैं। तो जस्ट लाइक चलते चलते हमने क्या किया कि गम खा लिया, और जो बड़ी समस्या है अर्थराइट जैसी, क्योंकि आजकल अर्थराइटिस मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, तो कितना सिंपल आप देख सकते हो कि नेचर में चीजें कितनी सिंपल आपको प्रोवाइड की है, कि बस आपको एक पेड़ के छाल पे कुछ चाकू से ये करना है, उसका गम बाहर आएगा, वो गम को बस आपको खाना है। अगर आप एक लिमिटेड इसमें सर्टेन क्वांटिटी में खाते हो तो आपको अर्थराइटिस जैसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिल सकती है, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सोल्यूशन ऑफ 5 रुपीज और 10 रुपीज आपको कितना खर्चा लगेगा गम निकालने के लिए, बस आपको एक कोई नोकीली चीज लगेगी, बाकी नहीं, और बाकी आपको पेड़ ढूंढना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये भी रेयर होते जा रहे हैं। एंड अगर हम कंपेयर करेंगे कि हॉस्पिटल में हम अर्थराइटिस के लिए जाते हैं तो कितना इकोनॉमिकली भी कितना लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, मेंटल लॉस होता है, फिजिकल लॉस होता है। उसी जगह पे अगर हम ये चीजें करेंगे, ऐसी आयुर्वेदिक चीजें करेंगे या फिर ऐसा जो हमारा एंशिएंट नॉलेज यूज करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मोस्टली अर्थराइटिस के लिए ये पेट का गम जो है वो यूज किया जाता है, एंड इट इज आल्सो यूज फॉर सम एरोमेटोग्राफी। So this is also unique tree. Most of the मराठवाड़ा में ये ट्री बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, कॉमन ट्री वहां पे बोला जाता है। या नेक्स्ट वन इज महुआ। आई होप कि आपने महुआ के बारे में कभी तो सुना होगा, क्योंकि लोग कोई पेड़ के बारे में सुने या ना सुने, उनको महुआ बड़ा पता होता है। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि महुआ का पेड़ कैसा दिखता है, तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी हम समझेंगे। इसका बॉटनिकल नेम है मधुका लॉन्जिफोलिया, मधुका इंडिका भी है एक स्पीसीज। कॉमन नेम बटर ट्री, महुआ, मधुका, मोहो उसको मराठी में बोला जाता है, ट्री कैटेगरी में आता है। तो एज अ मेडिसिनल यूज अगर हम देखेंगे तो इट इज यूज फॉर टू ट्रीट रिमूविंग इंटेस्टाइनल वर्म्स एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एंड इन केस ऑफ बहुत सारे मेडिसिनल यूज महुआ के हैं, बट इसका सबसे जो प्रचलित या फिर सबसे फेमस जो यूज है कि इससे अल्कोहल बना जाता है रूरल एरिया में। तो ये सिंगल पेड़ पूरी गांव की इकोनॉमी को मैनेज करता है। आप इमेजिन कीजिए कि पूरे गांव के, अभी मोस्ट ऑफ दी मध्य प्रदेश या फिर जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहां पे ये पेड़ ज्यादा ग्रो होते हैं, और पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कबीला इस एक पेड़ पे डिपेंड होता है। एक पेड़ मतलब मल्टीपल इंडिविजुअल्स ऑफ दिस महुआ ट्री। तो इसके जो फ्लावर्स निकलते हैं उस फ्लावर से अल्कोहल बनाया जाता है, ट्रेडिशनल अल्कोहल बनाया जाता है, मोहाची दारू जिसको मराठी में बोला जाता है, और पूरी की पूरी इकोनॉमी ये पेड़ चलाता है गांव की एक कम्युनिटी की। जब हम नेटिव पेड़ों की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के साथ एक कमर्शियल बेनिफिट भी हमें उन पेड़ों का मिल सकता है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। तो मुझे लगता है कि देयर इज प्रोबेबली नो अदर इंडियन ट्री दैट होल्ड एट मच इम्पोर्टेंट फॉर ट्राइबल इंडिया एंड एज अ महुआ, क्योंकि ट्राइबल लोग सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अर्बन एरिया में ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो गए, बट ट्राइबल लोग तो डेफिनेटली इसका यूज करते हैं। महुआ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्री ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइबल इंडिया, कि उनकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू जो हमारा एंशिएंट आयुर्वेदा है, एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट इकोनॉमिकल जो सिस्टम था उससे ये क्लोजली अलाइन होता है। So mahua is a fast growing tree that reaches up to height 12 or 20 meter, sometimes 25 भी होता है, and it bears a small fleshy flowers in the month of March April that are usually pale white to yellowish in shade. These flowers are used to preparing one of the most famous drink, जैसा हमने डिस्कस किया कि महुआ वाइन उसको बोलते हैं, या फिर महाराष्ट्र में मोहाची दारू इसको बोला जाता है। And mahua is loaded with an active compound that provide a tremendous medicinal and therapeutical values, from seasonal flu to fever to epilepsy to various types of diseases. तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नीचे मैंने कुछ मेडिसिन के फोटोज भी ऐड किए कि मेडिसिन में भी महुआ यूज किया जाता है। एमपी में बहुत सारे महुआ के पेड़ है, वहां पे ग्रो किए जाते हैं। फार्मर्स आज भी इसको एक इम्पोर्टेंस देते हैं, इसको ग्रो करते हैं। सो तो फिर इसके वाइन में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे क्या? तो बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड सेलिंग पॉइंट हमारे ऑडियंस में के लिए, मे बी।
महुआ का जो अल्कोहल एक्सट्रैक्शन है उसमें वो हेल्थ के लिए तो अच्छा ही माना जाता है, बट मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को कि आप मतलब अभी कल से ही स्टार्ट करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि एक गांव की या फिर एक कम्युनिटी की इकोनॉमी एक पेड़ के वजह से कैसा चल सकती है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवर नेटिव ट्री, कि एक सिंगल ट्री कैन पूरे कबीले को या फिर पूरे गांव को वो सर्वाइव कर सकता है, उनका इकोनॉमिकल बैलेंस ठीक कर सकता है। एंड ये भी एक ऑर्गेनिक ड्रिंक हम उसको बोल सकते हैं, अल्कोहल इज समथिंग डिफरेंट उसका हो सकता है, और बोल सकते हैं हम ऐसा कि उसमें हाईली मेडिसिनल वैल्यूज है, तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ। बट देखिए मुझे लगता है सैंड्रा, कोई भी चीज अगर हम लिमिट में करेंगे तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ। एंड अगर कोई भी चीज हम एक्सेस करते हैं, अगर हम शुगर भी ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो हमें शुगर होके हम मर सकते हैं। अगर हम नमक भी ज्यादा खाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ के हम ये कर सकते हैं। और अगर हम स्नेक का जो जहर होता है, पॉइजन, स्नेक पॉइजन, उसको अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं तो वो भी एज अ मेडिसिन एक्ट कर सकता है। सो इट्स डिपेंड। पॉइजन मीन व्हाट, कि जो भी अगर हम जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो, दैट इज अ पॉइजन। सो नेक्स्ट ट्री देखते हैं, आंवला। आंवला के बारे में भी अभी लोग अवेयर है। मैं देख रहा हूँ कि अभी आंवला कैंडीज भी अच्छे मार्केट में आते हैं, आंवला का यूज किया जाता है। फाइलेंथस इम्ब्लिका इसका बॉटनिकल नेम है। आंवला इंडियन गूसबेरी इसको बोला जाता है। आंवला का सबसे बड़ा यूज है कि इसमें विटामिन सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी एनी फ्रूट। अगर आप कोई भी फ्रूट को कंपेयर करोगे आंवला से, तो आंवला में जो विटामिन सी का क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो इम्यूनिटी बूस्टर एंड डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए आंवला इज द बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगता है। और अभी तो हाइब्रिड आंवला भी आ रहे हैं, देसी आंवला भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है। अभी लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए कोरोना के बाद। पहले लोग एक्सरसाइज में इतना टाइम नहीं स्पेंड करते थे, बट जैसा उनको पता चला कि नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ के आगे पैसा भी नहीं है, सारी चीजें हेल्थ के बाद ही आती है, तो अभी लोग जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि ये जो आंवला है, आंवला का जूस अभी लोग पी रहे हैं, नीम का जूस अभी लोग पी रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग अभी अवेयर हो रहे हैं खुद के बारे में, खुद के इसके बारे में। तो दिस इज ऑल्सो गुड प्लांट। छोटा प्लांट होता है, ज्यादा नहीं बढ़ता, आप इसको घर में लगा सकते हैं। सो आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा ये होता ही है, बट इसके साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। ये हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे शरीर में जो शुगर लेवल है ये उसको भी मैनेज करता है। आंवला का जूस जो है वो प्रमोट करता है हमारे हार्ट को, हेल्दी हार्ट के लिए वो अच्छा जूस माना जाता है। डिटॉक्सिफाई करता है ये हमारे बॉडी को। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेज वी हैव फॉर आंवला। सो आंवला अगर आप डेली कंज्यूम करते हो एक सर्टेन क्वांटिटी में, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हमें जैसा मार्केट में जाते हैं, बच्चों को हम टॉफी लेके देते हैं, टॉफी चॉकलेट्स होती है, कैडबरी होती है, बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं। सो वो खाने के बाद हमें तो पता है कि इसका कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट होने ही वाला है, दांत खराब हो गई या फिर कुछ शरीर पे इफेक्ट होता है। तो उससे अगर अच्छा, अगर हम अपनी आंवला कैंडी बच्चों को देते हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट से बने हुए जो छोटे छोटे चीजें होती है वो अगर देते हैं, तो एक तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, और जो हमारा बच्चा या फिर जो हमारा फैमिली मेंबर है वो जो खाएगा, उसका कुछ पॉजिटिव यूज उसके शरीर पे होगा एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी चॉकलेट्स वगैरह की बात करें तो। बट अभी लोगों को चॉकलेट्स ज्यादा पसंद है, शायद वो ये प्रिफर नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है करना चाहिए। दिस इज अनदर यूनिक ट्री स्पेसिस दैट इज कॉल्ड मेड़ सिंगी। इसको हिंदी में भेड़ सिंगी बोला जाता है। इसको भेड़ सिंगी बोलने का रीजन ये है कि इसके जो पॉट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो पॉट्स होते हैं वो भेड़ के जो सिंग होते हैं उसके जैसे राउंड होते हैं, थोड़े से राउंड, इसलिए इसको भेड़ सिंगी बोला जाता है। और इसकी जो बार्क होती है, बार्क एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट बोल के यूज होती है। और इसके जो लीव्स है, पाइल्स में जो ब्लडिंग होती है इनिशियल स्टेज में, वो ब्लडिंग को रोकने के लिए ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके कुछ लीव्स, अगर 10-15 लीव्स उसको अच्छे से धो के अगर हम अर्ली मॉर्निंग दूध अपना दही के साथ मिला के अगर खाते हैं, 2-3 चम्मच खाते हैं, तो जो पाइल्स में प्राइमरी स्टेज पे जो पाइल्स होता है उसमें जो ब्लडिंग होती है वो ब्लडिंग इससे रुकती है। तो ये हाईली एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी कैरी करता है। बहुत सारे लोग इसका यूज भी करते हैं। बट अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी आप ड्रग ले रहे हो या फिर कोई भी आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं। उस हिसाब से डोज फाइनल किया जाता है, उस हिसाब से ड्रग फाइनल किया जाता है। सो इट्स बेटर कि आप कहीं पे पढ़ के या फिर इंटरनेट पे देख के कोई चीज यूज करने से पहले कंसल्ट कर ले अपने फिजिशियन से। मुझे नहीं लगता सैंड्रा कि किसी को तुलसी के बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी कि तुलसी क्या वैल्यू रखती है हमारे लाइफ में, और हमारे कल्चर में। आप देखिए कि आपने पुराने अगर मूवीज देखी होगी, तो
घर के सामने तुलसी का पेड़ लगाया होता, मतलब ये तो कंपलसरी है कि कोई भी जगह पे घर के सामने तुलसी का पेड़ रहेगा, और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग नहाना धोना होने के बाद सबसे पहले तुलसी की पूजा की जाएगी। तो क्यों करते थे ये, हम तुलसी की पूजा क्यों करते थे? क्यों हम किसी कांटे वाले पेड़ की पूजा नहीं करते थे या फिर नॉन नेटिव पेड़ की पूजा नहीं करते थे? तुलसी की पूजा इसलिए करते थे कि तुलसी हैज अ लॉट्स ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अगर तुलसी का यूज आप आपके डेली इसमें करोगे, अगर आपके घर के सामने कोई पेड़ है तो आप उसको डेली यूज कर सकते हो। तो एम वही था कि आपके घर के सामने तुलसी लगाओ, डेली उसके पत्ते यूज करो अलग अलग इसमें, तो आपके शरीर को उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से फायदा मिलेगा। इसलिए आपके आंखों के सामने, आपके घर के सामने ये पेड़ चाहिए। और उसकी पूजा एज अ भगवान करते थे, क्योंकि जो चीजें हमें उस पेड़ से मिल रही है वो बहुत, मतलब उसकी वैल्यू हम प्राइस में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई तुलसी हर घर के सामने होता था। बट अभी मॉडर्नाइजेशन, जैसा हम बोल रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, वी आर वेरी मॉडर्न पीपल, तो अभी तुलसी की जगह हमारे बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन वाले जो इंडोर प्लांट्स है उन्होंने ले ली। अ, मुझे बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि किसी ने घर में अभी तुलसी लगाई, क्योंकि सबको अभी क्या चाहिए, क्रोटॉन वगैरह, और वो जो जो भी मतलब कलरफुल फ्लावर दिखते हैं, जो दिखने को अच्छे लगते हैं, बट उनका ना तो कोई यूज है ना वो मतलब कोई बेनिफिशियल है इन्वायरमेंट के लिए, बस वो हमारे आंखों को अच्छे दिखते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ट्री वी शुड प्लांट दिस टाइप ऑफ ट्री, अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी, छोटे छोटे होते हैं, हम हमारे बालकनी में लगा सकते हैं, घर के सामने लगा सकते हैं, घर के पीछे अगर जगह हो बैकयार्ड में वहां पे लगा सकते हैं, उसका यूज होगा आपको। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग दिस ब्यूटिफिकेशन वाले ट्रीज वी शुड प्लांट दिस टाइप ऑफ shrubs। सो तुलसी के बहुत सारे यूज हैं, एंड हर इंडियन को ये चीज पता है कि तुलसी हम यूज करते हैं, तुलसी के बेनिफिट्स होते हैं। बट अभी नाउ डेज तुलसी भी लोग कम यूज कर रहे हैं, कम लगा रहे हैं। बस ऐसा हो गया कि कुछ इवेंट हो या फिर कुछ मतलब बताने के लिए अभी हम तुलसी लगा रहे हैं, बट डेली यूज में अभी उतना यूज नहीं रहा जितना हमारे एंशियंट पूर्वज करते थे। तो जैसा हमें भले ही लगता है कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, बट जो नॉलेज हमारे पूर्वजों ने यूज किया वो बहुत वैल्यूएबल था, बहुत वैल्यूएबल था, और वो नॉलेज हम लॉस करते जा रहे हैं और हम ऐसी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। जैसा हमने देखा कि हमने प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया, और जो सस्टेनेबल मेथड थी उसको हमने, वो प्लेट्स को, वो अभी हमने बंद कर दिया। और अभी लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने डिग्रेडेबल प्लेट्स वगैरह बनाई। ओके, दैट इज अनदर पॉइंट। नेक्स्ट वन इज अ बेहेडा। इसको टर्मिनालिया बेल्लारिका बोला जाता है। टर्मिनालिया के 3 स्पेसीज हमने देखी, टर्मिनालिया अर्जुना, टर्मिनालिया बेल्लारिका और टर्मिनालिया चेबुला। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सो जो त्रिफला चूर्ण है, जो इंडिया में मतलब मुझे लगता है कि हर एक घर में होता है त्रिफला चूर्ण, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है बेहेडा। इसमें बेहेडा होता है, टर्मिनालिया चेबुला, टर्मिनालिया बेल्लारिका और हमारा आंवला, इन तीनों का मिला के त्रिफला चूर्ण बनता है, जो कि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। एंशियंट टाइम में त्रिफला चूर्ण वाज वेरी फेमस, कि सबसे फेमस, हर एक घर में त्रिफला चूर्ण होना ही चाहिए। सो इट्स बिलोंगिंग टू टर्मिनालिया। नेक्स्ट इज हिरडा, टर्मिनालिया चेबुला। तो जब जैसा भी हमने डिस्कस किया कि त्रिफला चूर्ण में हिरडा, बेहडा और आंवला, इन तीनों का मिश्रण है, और ये तीनों के मिश्रण से एक ऐसा फॉर्मुलेशन बना है जिससे हमारा ओवरऑल हेल्थ, हम स्वास्थ्य हम अच्छा रख सकते हैं। या सो दिस इज वेरी कॉमन। नीम हम सबको पता है, पहले नीम का ज्यादा ये था, नीम हम लगाते थे। बट जैसा अभी हम देख रहे हैं ना, मोस्टली अर्बन एरियाज में क्या हुआ है कि लोग अभी इन्वायरमेंट के बारे में ना सोचते हुए, जो आपके आंखों को अच्छा लग रहा है, जो आपके आंखों को, अभी बहुत सारे ऐसी नॉन नेटिव स्पीसीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिरिसिडिया सेपियम। ग्लिरिसिडिया सेपियम आप अर्बन एरिया में लगाओगे, गार्डन्स में लगाओगे, या फिर कहीं रिस्टोरेशन की जगह पे लगाओगे, तो वहां की जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट, वो टोटली डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सेम विद लैंटेना कैमरा। लैंटेना कैमरा भी इंट्रोड्यूस किया, वो हमारे लोकल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है इन्वेजिव स्पेसिस से। और जो हमारे नेटिव ट्रीज है अभी वो थोड़े खत्म होना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारा उनका भी लॉस हो रहा है। तो नीम भी हम देखते हैं, हमें पता है कि नीम में बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, और बहुत सारे जो आप अगर मार्केट में देखते हो तो फेस वॉश वगैरह भी आते हैं नीम के। तो स्किन रिलेटेड डिसीज के लिए नीम यूज होता है, एंड हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में इससे कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना के जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड था उसके जगह पे हम नीम का अर्क यूज करते थे। बट अभी उसकी जगह भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड ने ले ली, केमिकल पेस्टिसाइड ने, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है उसका भी पोल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है। सो एग्रीकल्चर में भी नीम का यूज होता है, स्किन रिलेटेड डिसीज में भी यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज वर्ड, हमें पता है कि
फाइकस एकमात्र ऐसी स्पेसीज है कि आप देखो कि रोड पे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या फिर बिल्डिंग के ऊपर अगर कहीं पे थोड़ी सी मिट्टी हो, कहीं पे भी वर्ड और पिंपल ये पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। बिकॉज एज अ बॉटनिस्ट मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे यूनिक पेड़ है। आप अगर इसका सीड देखोगे तो एकदम छोटा, राई के दाने के बराबर इसका सीड होता है, कि वो जर्मिनेट होना भी मुश्किल होता है, और इतना छोटा सीड होता है, बट वो एक सीड इतना बड़ा पेड़ डेवलप करता है। और उस पेड़ बड़ा होने के बाद इस पेड़ पे पूरी एक इकोसिस्टम डेवलप होती है। आप देखना वर्ड और पीपल के पेड़ के पास आपको छोटे छोटे इंसेक्ट भी देखने को मिलेंगे, आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, आपको बर्ड्स घर देखने को, नेस्टिंग देखने को मिलेगी, चिटिया देखने को मिलेगी। तो एक पूरी इकोसिस्टम एक पेड़ में समाई हुई थी। एक पेड़ पूरा इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, तो इतना ये यूजफुल पेड़ है। और इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस देखे जाते हैं। आप नीचे देख पा रहे हो कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसके मार्केट में सेल होते हैं। अभी तक मतलब लोगों को पता है कि वर्ड बस छाव देता है, बड़ा पेड़ है, बट इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। तो जैसा हमने देखा कि एज पर द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 44,000 स्पेसीज जो हमारे पास है, मुझे लगता है कि हर एक स्पेसीज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। उसको डिस्कवर करने को टाइम लगता है, या फिर थोड़ा सा हम प्रॉपरली डिस्कवर नहीं कर पाते, बट each and every native species has some medicinal property. That's why we should plant only native tree. And what we are doing in a Green Yatra, we are only planting a local native tree with a various innovative methodology, just like a Miyawaki Biodiversity Park. We are also restoring the water bodies, क्योंकि हम बस टेरेस्ट्रियल का अगर बात करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा, हमें टेरेस्ट्रियल के साथ एक्वेटिक भी देखना पड़ेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी मैनेज करने पड़ेगी। दैट्स व्हाई अभी हम मैंग्रोव्स में भी काम कर रहे हैं, मैंग्रोव्स रिस्टोरेशन में भी हम अभी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सो टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक दोनों को हम सपोर्ट करके इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, और अर्बन एरियाज में फिर से जो लॉस हुई बायोडाइवर्सिटी है उसको ब्रिंग बैक करने का हम प्रयास करते हैं। दिस वॉज सच अ ग्रेट सेशन सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। आपका सेशन सुनकर मुझे ऐसा एकदम लग रहा था कि अरे यार, ये तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट मेडिसिन अगर मैं यही चीज ले लेती तो कितना ज्यादा बेटर होता मेरे हेल्थ के लिए। एंड आई कैन टोटली वाउच फॉर थिंग्स लाइक आंवला कैंडी वगैरह, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती थी लाइक बाय बस, जब मैं ट्रैवल करती थी लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो मुझे बहुत मोशन सिकनेस होता था। एंड आई वाज गिवन दीज वॉमिटिंग टैबलेट्स एंड ये वो सब खाओ, कुछ नहीं, मैं बस एक आंवला कैंडी खाती थी, एक आंवला सुपारी खाती थी, एंड आई वुड बी गुड। एंड दैट वाज, वो बस चल जाता था एकदम मैजिक जैसा। सो आई कैन एक्चुअली सी हाउ, अगर एक वो आंवला का चीज अगर मेरे लाइफ में इतना बेनिफिट कर सकता है, तो अगर मैं ये सारी चीजें अगर डेली लाइफ में हम ट्राई करेंगे यूज करने, तो कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमें। एंड आज आपने हमें इस सेशन में बता दिया है अलग अलग चीजों की अलग अलग यूजेस, सो इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड रियली होप कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस सेशन से। थैंक यू सेंड्रा। एंड मुझे लगता है कि हमें जो टाइम लिमिट है हाफ घंटा या 1 घंटा, उसमें अभी तो हमने कुछ, मुझे लगता है कुछ 10-12 स्पेसिस देखे हैं, बट अगर हमें पूरे स्पेसिस की स्टडी करनी है तो मुझे लगता है ऐसे सस्टेनेबल सैटरडे के हमें 100-200 सेशन लेना पड़ेगा। बट ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ बाकी और ट्रीज देख सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज में जो इंपॉर्टेंट ट्रीज मुझे लगे, जो इजीली अवेलेबल है, हमारे सराउंडिंग में मिलते हैं, लोकल इकोसिस्टम में जो पाए जाते हैं, उसके बारे में मुझे लगा कि हम बात कर सकते हैं आगे, और हम कुछ ट्रीज के बारे में अगले सेशंस में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, Siddharth. Looking forward. Thank you, audience.